I'm Ashwarya, and today we have a special session for you all. Today we have with us Dr. Kansha Kapoor, who is a co-founder at EduCrafted Education, and she is an experienced assistant professor and also a PG trainer. So let's welcome her first. Welcome you, ma'am. Hello Aishwarya, how are you? I'm great. I'm very good. How are you, ma'am? I'm also good. So आज मैम से हमें बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है फॉर अ करियर कि बच्चों का करियर कैसे ऑप्ट करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कहाँ हम लेट करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, किन किन की जिम्मेदारी हो सकती है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने की सोसाइटी की तरफ. So we are really excited to know these all things from you, ma'am. But before starting about a career, we'd like to know about you. About me, okay. I have started my career. If I say about myself, so I have started my career as a assistant professor, or as a lecturer for some college. Previously, I was not sure whether I have to be in the teaching or in some other field. I have been selected for the PO examination of bank. I was not so happy कि यार ये क्या चल रहा है, why मतलब I was not even enjoying the fact that I was working with some bank. Even I was not able to go and join my bank. So I have started to teach students, and then I have realized that okay, my main focus, my main career, and my main intention is towards teaching. So that brings me towards teaching, and now I have worked as a principal also of some college. And in that time phase I have realized that students yeah, we all are facing the problem of communication, we all face the problem of language, we all face the problem of confidence. Like they are somewhat skilled with their knowledge, but they are not skilled with their, they are not so much confident with the scenario we are facing. So I have turned my little bit of my career towards a personality training development, language improvement, and then we have come with the idea of this EduCrafted Education, where we provide training, psychological development, investment plannings to our students and candidates. All right. So if we, as we are talking about the career guidance, what is an education and how education relate to a career? Like everything depends on education. आपका career जो है, it's not everything, but most of the part of your career depends on education. So how you will relate education towards the career? If we talk about education and how is it related to career in our scenario, yeah, in our country, the main problem is that we do not differentiate between education and qualification. There's a vast difference between education. Education is actually is your skills, your specialization, your learning, your confidence, the process which gives you a confidence. Yes, I can do it. Yeah, yes, I know this. And the qualification which gives you certified, like which gives you certification that the person who has done this education is qualified in this scenario. But the problem is we treat our academic education as our education. So the whole process comes to a problem when we decide our career on the basis of our qualification. Like for example, if I say that if I'm postgraduate from a management degree, so my main focus as a career would be I have to be a marketing manager, yeah, I have to join some company as a finance intern, yeah, I have to be in the company for some HR process and all that. In fact, that MBA degree, like management professional degree, is just my qualification. I may acquire some other knowledge also, I may acquire some other skills also, in which we are aware that we can make our career more better. हम करियर की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये, व्हाइल डिसाइडिंग अ करियर, जब बच्चे 12th पास होते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन की तरफ ध्यान ना देते हुए कंफ्यूज होता है कि उन्हें आगे क्या करना है. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स choose their career on the basis of where their friends are going to get education. Like 80% बच्चे यही करते हैं कि अच्छा तुम उस कॉलेज में जा रहे हो, फाइन मैं भी इसी कॉलेज में आ सकता हूँ, but they do not focus on their education, their qualification.
वो एक बड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। दूसरे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते 12th तक कि मुझे किस साइड जाना है। दे स्टिल कंफ्यूज कि एडमिशन होने तक भी उन्हें कंफ्यूजन होता है कि मुझे करना है नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें फर्स्ट ईयर तक भी कंफ्यूजन होता है कि मैंने एडमिशन तो ले लिया, तो मुझे करना था या नहीं करना। सो क्या पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए, क्या कंसिडर करना चाहिए चूज करने से पहले अपने करियर को? ओके, ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो अभी अगर हम आज का टाइम बात करें तो स्टूडेंट्स आर मोर इंटेलिजेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम। ये फैक्ट है। लाइक एजुकेशन सिस्टम पहले से पुअर हुआ है, एजुकेशन सिस्टम जरूर पुअर हुआ है, पर स्टिल स्टूडेंट्स आर मोर इनटू देयर करियर ऑप्शन। पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज क्लियर करती हूँ। आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, एम, गोल, ऑब्जेक्ट और विजन। अब होता क्या है, वी जस्ट फोकस, इन चारों को हम एक ही चीज समझ लेते हैं। लाइक अगर मैं किसी से पूछूंगी आज, किसी से भी स्टूडेंट को या मैं किसी को भी खड़ा करके पूछती हूँ कि एम, गोल या ऑब्जेक्ट में मुझे डिफरेंस कर, बोलेगा एक ही है। लाइक वही एम हो गया, वही गोल। दिक्कत कहाँ आती है, हम अपने करियर को अपने एम या अपने गोल तक में जोड़ के रख लेते हैं। आपको करियर को डिसाइड करने के लिए अपने विजन को बड़ा करना पड़ता है। आपको अगर अपना विजन आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका विजन, इफ यू हैव दैट मच फार, मतलब वाइडर विजन, तो उसके लिए आपका करियर आप बहुत प्रॉपर वे में फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, आप करियर की बात करते हो तो अब करियर तो आप किसी भी चीज में, आप जर्नलिज्म को भी करियर ही ट्रीट करेंगे क्या? आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल आप और पीछे जाए, नहीं, सिनेरियो चेंज हुआ ही ना। आज के तारीख में जो ये कचरा वगैरह, ये भी अपने आप में जो कचरा बीनने वाले वगैरह होते हैं, ये लोग पूरा उसको पूरा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट होके पूरा उससे लाइटनिंग मशीनरी वगैरह की हेल्प से वो भी हमको एक तरह से पूरा प्रोसेस करके दे ही रहे हैं। तो अगर हम सीरीज सी बात करें तो अगर मैं अपने छोटे छोटे से एम्स को, अपने एक गोल को अचीव करने के लिए तैयार करूं, मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना विजन क्रिएट कर लेती हूँ कि मुझे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अपने आप को एज ए स्टॉक ब्रोकर देखना है। अगर मैं वहां पे खड़ी हूँ, मुझे वहां पे अपना नाम भी चाहिए। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग हमारे करियर को बना लेते हैं, मुझे पैसे कमाना है। पैसे कमाना इज नॉट योर करियर। कि यार क्या आपका करियर क्या है? यार एक अच्छा सा घर हो जाए, एक अच्छी सी जॉब सेटल हो जाए, फैमिली सेट हो जाए, एक आध में प्लॉट लेके रख लूं, गाड़ी हो जाए, ये आपका करियर नहीं है। दिस इज योर स्टेप टुवर्ड्स योर करियर। एक छोटे छोटे से आप एम्स बनाइए, उन एम्स को पूरा करने के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक गोल तैयार करिए। आपके जब छोटे छोटे एम्स पूरे होंगे, आप गोल पे जाओगे, उस गोल को अचीव करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, और जब ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तब आपके सामने आपका विजन, आपका करियर सामने दिखेगा। आपने नीड हायर की थ्योरी पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम पैसे कमाने लगते हैं तो हमको लगता है यार हमको यही हमारा करियर था, हमने 2-3 साल लगाए, हमने MBBS वगैरह करके 5-6 साल में मैं डॉक्टर बन गया, नाउ आई हैव अ गुड प्रैक्टिस, अच्छे खासे पेशेंट्स आते हैं, मैंने खूब प्रॉपर्टी वगैरह जनरेट कर ली। आपने क्या किया, पहला लेवल क्रॉस किया बेसिक नीड्स का, सेकंड लेवल क्रॉस किया आपने सिर्फ अपने सिक्योरिटी का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब फिर वहां आपको लगने लगता है यार करियर तो मजा नहीं आया, मेरे से ज्यादा अच्छा तो यार वो कंटेंट राइटर है, वो कितना एंजॉय कर रहा है। फिर पता पड़ता है कि आप धीरे धीरे अपने लेवल को आप कंपेयर करते हो। तो आप किसी भी एक जगह पे स्टैंड करके आप करियर में ग्रोथ कर गए हो या ये आपका करियर है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम, और ये चीजें मेरे ख्याल से तब बच्चे को सोचनी चाहिए जब उसका 12th क्लियर होकर और वो एक करियर की ओर अपना मोड़ ले लेता है, क्योंकि उस टाइम बच्चों के दिमाग में ये चीजें नहीं आती है। उस टाइम वो अपने एक अलग जोन में होते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि एक फ्रेंडशिप वाला जो जोन होता है, जो मैं हमारे साथ, मतलब मेरे साथ भी पर्सनली मैंने भी ये चीज फील की है जब व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। तो ये चीजें होती है कि तब इतना फोकस्ड ही नहीं होता है माइंड, तब ऐसा लगता है कि अच्छा कौन बच्चा किस साइड जा रहा है, किसी को देखकर हम अपने आप को उससे कंपेयर करने लगता है कि अच्छा इसका दिमाग, ये भी मेरे जैसी मार्क्स है, इसके मेरे जैसे परसेंट है, ये इस कॉलेज में जा रहा है, ये इस कॉलेज में आ रहा है, फाइन मुझे भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। बट उस वही टाइम हमने ये दिमाग नहीं वही लगाया पे होता है। वही मैं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वही बता रही हूँ, वही आपका विजन क्लियर नहीं होगा अगर, कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, तो फिर वही भेड़ चाल हो जाती है। और भेड़ चाल तो हर जगह है ऐश्वर्या, भेड़ चाल अगर आप देखोगे तो वो हर जगह ही चल रही है। आपको अगर खुद को अलग, अगर भीड़ से अलग करना है
तो आपको अपने कंफर्ट जोन को निकलना पड़ेगा। मेरे 4 दोस्त यही कर रहे हैं, कॉलेज में मुझे ग्रुप मिल जाएगा, कॉलेज का नाम है, वो चीज के संग आप एजुकेशन में आप क्यों, आप बच्चा सीए करता है, सीए के संग बीकॉम ही कर लेता हूँ मैं, आप सीए के संग बीकॉम ही क्यों सोच रहे हो कि यही एक ऑप्शन हो सकता है? हो सकता है आपके पास और दूसरे ऑप्शंस भी हों। पेरेंट्स पहले ही उनको इतना सिक्योर कर देते हैं, देख सीए नहीं हुआ तो तू बीकॉम करके एमकॉम करके अकाउंटेंट, तो आप पहले ही उनके करियर ऑप्शंस को, उनकी अपॉर्चुनिटीज को भान देते हो, वो आगे का सोच ही नहीं पाते हैं इतना। हम सीए की यहाँ पे बात हुई थी, वहां से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये मिथ मान सकते हैं हम या बातें मान सकते हैं, लोगों का ऐसा कहना होता है बच्चा कमजोर है पढ़ाई में तो इसे कॉमर्स दिलवा देते हैं, बेटा आर्ट्स ले लो, तुमसे मैथ्स नहीं होता है या तुमसे बायो तुम नहीं पढ़ पाओगे आगे। बट क्या ये रियलिटी है कि कोई बच्चा यदि कमजोर है तो उसे आर्ट दिलवाना चाहिए? या मुझे नहीं लगता एक्चुअली ऐसे, क्योंकि मेरे साथ जितने बच्चे कॉमर्स के आर्ट्स के उन्हें भी हमने देखा है कि वो शायद हमसे ज्यादा नंबर से खेलते हैं और उनका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज होता है। तो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, अपने देश में रिजर्वेशन तो आपको पता ही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और तो और हमारा जो हर एक फील्ड आप देख लो, चाहे वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो या आईआईएम की अगर हम बात करें, आईआईएम में भी कैटेगरी होती है, लाइक उसकी कुछ परसेंट सीट्स ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। ये सभी पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है। आपको पता है सिर्फ एक ही कोर्स ऑल ओवर इंडिया ऐसा है आईसीएआई की तरफ से, सीए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब आप सोचिए एक स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो सीए क्लियर कर रहा है और एक ऐसी एग्जाम को क्लियर कर रहा है जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो जनरल कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी से उसके लिए वो इक्वल है। तो क्या वो आपको लगता है कोई बहुत ही इजी गोइंग कोर्स होगा, या जैसे अपनी भाषा में नहीं बोलते हलवा होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली। रही बात बीए बीकॉम या हम जो कॉमर्स के कोर्सेस या इसको करते हैं, ये ट्रेंड हमने ही बिगाड़ा है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करें, फॉर इंस्टेंस एक कोर्स पकड़ते हैं, बीकॉम ऑनर्स अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कोर्स है। हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में आके उसने अपना ट्रेंड बदल दिया, बिगाड़ दिया। तो ये ट्रेंड हमने ही बिगाड़ा है कि कुछ नहीं करना है तो चलो कॉमर्स। किसने बोला कि कॉमर्स इतना इजी पड़ता है? या आप पीएससी यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए आपको बीए लेना पड़ जाएगा, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स आप बीए एलएलबी वगैरह में पढ़ रहे हैं जो आपको आईएएस की तैयारी में लगेंगे। तो आपको सोचिए ना, ऐसे कोर्सेज जो सीए हो गया या आईएएस हो गया या यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं आप, अगर ऐसे सारे कोर्सेज जिसमें आपको सब्जेक्ट्स जो मिल रहे हैं, जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स कैसे इजी हो सकते हैं? सब्जेक्ट कोई इजी या कोई टफ नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे मैथ्स के मैथ्स के एग्जाम के एक दिन पहले एक्चुअल में फीवर आता था। जो बोलते हैं ऐसा नहीं, मुझे सही में मैं 101 102 में सफर ही करने लगती थी, क्योंकि मुझे डर लगता है उस सब्जेक्ट से। पर अगर वही आप नंबर्स के संग अब आप देखोगे तो आई एम गुड विद माय अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट को हम इतना ओवर बर्डन ले लेते हैं या हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। बाकी इजी टफ तो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इजी एंड देयर इज नथिंग वर्ड लाइक टफ। और बात यहाँ पे हुई थी ना दिमाग की कि किसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे अगर हम बात करें किसी क्लासरूम की जिसमें 30-40 बच्चे हैं और एक टीचर जो पढ़ाता है वो, आप अगर एक क्लास में 40 बच्चा है तो वो एक बच्चे को भी वही पढ़ाएंगे और दूसरे बच्चे को भी वही पढ़ाएंगे। डिपेंड्स कि उन्हें उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है या उनका दिमाग कुछ चीज ग्रैब कर सकता है। तो कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं टीचर किसी बच्चे के करियर बनाने, क्योंकि लोगों का ऐसे कहना होता है कि ये टीचर ने हमारे बच्चे को इसलिए पढ़ाया नहीं, और मैथ्स का टीचर हमारे बच्चे का अच्छा नहीं था इसलिए हमारा बच्चा मैथ्स में रह गया पीछे। तो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करियर के लिए किसी बच्चे को? देखिए, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टूडेंट के करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मोर देन देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपने स्टूडेंट के करियर को सेट या खत्म करने के लिए, तो वो टीचर है। एक अच्छा टीचर ही होता है जो बच्चों को, आप बैक बेंचर्स की जैसे बात करते हैं, अब्दुल कलाम ने बोला जितने भी ब्रेन या शार्प माइंड स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे वो बैक बेंच पे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टीचर उनको इग्नोर कर रहे हैं। टीचर भी जानते कहीं ना कहीं वो बैक बेंचर भी जो है दे हैव देयर कैपेबिलिटीज। अब जो अच्छे टीचर्स होते हैं, अच्छे, खैर टीचर तो टीचर है, अच्छे बुरे क्या, पर हाँ जो इस फील्ड, दिक्कत क्या होती है ऐश्वर्या, थोड़ा वास्ट करते हैं इसको। टीचर्स के संग दिक्कत क्या होती है हमारे यहाँ पे या बहुत सी कंट्रीज में, अगर आप देखो द लोएस्ट पेइंग जॉब अगर कोई वो है तो है टीचिंग।
आप अगर सबसे ज्यादा जिसमें आपको एफिशिएंसी चाहिए, आप एक ऐसे प्रोफेशन की बात कर रहे हो जो सारे प्रोफेशंस को तैयार कर रहा है, आप एक ऐसे प्रोफेशन को इतना अंडररेट कर रहे हो, तो कहीं कहीं ना कहीं उनका भी मोरल डाउन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चलिए हम मानते हैं कि एक कैटेगरी हमने उसके बावजूद भी एक अच्छी निकाली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रंजीत सिंह जी का नाम आ रहा है ग्लोबल टीचर्स अवार्ड में इंडिया की तरफ से, मतलब उन पूरे 120 कंट्रीज में से 20,000 लोगों में से जो विनर हैं वो अपने इंडिया महाराष्ट्र के एक टीचर हैं। तो ऑब्वियसली आप एजुकेशन लेवल में ये तो नहीं बोल सकते कि इंडिया कहीं बुरा है, लेकिन टीचर के संग दिक्कत क्या होती है कि अगर वो उस चीज को कैच नहीं कर पा रहे कि यार मैं ही इसके फ्यूचर के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे उस लेवल पे आके अगर वो अपने काम को कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, तुम्हारा काम हो गया, पास कर दिया, फेल कर दिया, जाओ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएगा, तो स्टूडेंट्स जो उसको एडमायर कर रहे हैं, उसको मेंटोर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेस को उतना अचीव नहीं कर पाएंगे जितना एक टीचर, एक अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ सेट कर देता है। और ये तो मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, एक हम अच्छा टीचर टीचर तो आपको रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है ग्रोथ दे सकता है। और काफी हद तक होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल के साथ समझाया, लेकिन हम अगर बात करें किसी पेरेंट्स की, तो जरूरी नहीं है कि आपने किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन कर दिया उसके बाद आपकी छुट्टी हो गई, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी उतना ही अहम योगदान होता है किसी बच्चे का करियर बनाने में। और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका अभी तो काफी सुधर चुकी है चीजें, बट हमने देखी है, ये इंडिया है, यहाँ पर करियर को थोपा जाता है बच्चों पर बहुत जगहों पर आज भी, कि बेटा तुम स्टार्टिंग से बोलते तुम तो डॉक्टर बनोगे या तुम इंजीनियर बनोगे, तुम ये बनोगे, और वो बच्चा फिर स्टार्टिंग बचपन से सोचते सोचते उसका ऐसा था अच्छा मुझे तो यही बनना है, और वो उसकी खूबी क्वालिटी से कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। तो पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है किसी बच्चे का करियर बनाने में, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स दो तरीके से मैं बोलूंगी रिस्पॉन्सिबल है। पहले तो आजकल पेरेंट्स ना पैम्परिंग बहुत देने लग गए हैं। आपको अगर याद हो हमारे टाइम में, या शायद तुम लोगों के संग भी होता होगा, हम लोग के टाइम में तो ऐसा था कि अगर हम स्कूल से या कॉलेज से पिट कर आए हैं तो हम पेरेंट्स को बताने में डरते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग पूछेंगे थोड़ी ना क्या कारण, तो ये 2 और लगा देंगे कि मम्मी इन सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, या पहले कॉर्पोरेट पनिशमेंट भी अलाउ थी हम लोगों के टाइम पे। मैं तो बहुत पिट पिट के घर आती थी, तो मुझे डर रहता था कि इनको पता पड़ेगा तो मेरी मम्मी मुझे पहले 2 और लगाएंगी, फिर मेरे से बात करेंगी कि क्या किया तुमने। वो अब अभी क्या हो गया, पेरेंट्स आर मोर टुवर्ड्स पैम्परिंग। चाणक्य का एक सिंपल सा फंडा था कि उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई थी, 5 साल तक बच्चों को आप बिल्कुल पैम्पर्ड वे में किड की तरह, एक छोटे से बच्चे को जैसे आप प्यार देते हो ना वैसा दीजिए। 5 से 13 साल तक का जब वो बच्चा है तो आप छड़ी की नोक पे रखिए उसको, मतलब आप इतना स्ट्रिक्ट रहिए एज अ पेरेंट, आप इतना स्ट्रिक्ट रहिए कि बच्चा आपके नाम से भी कांपे, डरे, आपसे कुछ भी बोलने में उसको सोचना पड़े। 13 साल से आप बच्चे के फ्रेंड बन जाइए, दोस्त, एक जैसे फ्रेंड होता है, तो क्या होगा, बच्चा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो एक एज ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में ढल जाएगा। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जरा सा आपने बच्चों को बोला, पेरेंट्स कल को धरना लेके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कॉर्पोरेट पनिशमेंट तो चलिए ठीक है, बंद हो गई, अच्छी बात है एक तरह से, लेकिन पेरेंट्स इतना इंटरफियर करने लग गए हैं अब टीचर्स के काम में कि टीचर्स को भी लगता है कि इनके हिसाब से चलने दो, जाने दो, आपने क्यों डांटा, इसके मार्क्स 4 नंबर क्यों काटे, 3 नंबर क्यों काटे, लैंग्वेज में क्यों काटे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इंटरफेरेंस इतना भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स अपने अपने किड्स को, जब अपने बच्चों को जब एक प्रॉपर करियर के लिए गाइड करते हैं, जैसा आपने मुझे बोला कि फोर्स रहता है कि मेडिकल इंजीनियरिंग, या भैया या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, या कॉमर्स ले लिया अगर तो तू सीधे सीए करेगा, और अगर नहीं ये सब नहीं करना तो फिर तो आईएएस के लिए बैठ, तुम यूपीएससी क्लियर करो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेरेंट्स पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा उनका एक सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए था कि नहीं यार एक जॉब है, सिक्योर्ड फ्यूचर है, ठीक है। फिर थोड़ा सा प्रोफेशंस को एक्सेप्ट किया कि नहीं डॉक्टर सीए वगैरह वहां तक आए। अभी पेरेंट्स काफी ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं, दे आर लर्निंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग पैशनेट विद देयर किड्स, कि कैसे इनके पैशन को भी हम भी एक्सेप्ट करें। दिक्कत कहाँ थी ऐश्वर्या, जब वो इस पैशन में पेरेंट्स इतने डूब जाते हैं कि वो बच्चों को बच्चे ना समझ के अर्निंग मशीन समझने लग जाते हैं कि नहीं यार उसने इस मैच में इतना स्कोर किया, तू कैसे पीछे रह सकता है। आप डांस कंपटीशन, रियलिटी शोज वगैरह होते हैं, कभी आप ऐसे साइकियाट्रिस्ट उस चीज को कैच करने की कोशिश करना। बच्चे जो आते हैं धीरे 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 जैसे जैसे वो रियलिटी शो आगे बढ़ता जाता है ना, उनका बचपना खत्म होने लगता है, क्योंकि पेरेंट्स उनको इतना फोर्स कर देते हैं। आप बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहने दीजिए, वो अपने आप अपना फील्ड आपको चुन के बता देंगे।
आपको पता है मुझे याद नहीं आ रहा है, हमारे साउथ इंडिया के किसी गांव में, बहुत ही केरला का कोई गांव है, बहुत ही अंदर पिछड़ा, एकदम बहुत ही रिमोट एरिया है। वहां पे आज भी बच्चों को 3-4 चीजें उनके सामने रख दी जाती हैं। जब वो 8-9 महीने का होता है, क्रॉलिंग ही शुरू की होती है उसने ढंग से, उस जिस चीज पे वो हाथ रखता है ना, वो उसी पे उसका फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि तू मतलब अगर किताब पकड़ ली, रंग बिरंगी किताब दिख गई, अच्छा तो इसको खेल कूद में नहीं, इसको तो पढ़ने में इंटरेस्ट है, बॉल उठा ली तो स्पोर्ट्समैन बनेगा। आज भी इस तरीके से बच्चों के करियर डिसाइड होते हैं, फिर उनको बचपन से उसी तरीके से बड़ा किया जा रहा है, उसी तरीके से वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, और ये तो बात हो गई बैकग्राउंड की कि किसी बच्चे के करियर के पीछे क्या टीचर का बैकग्राउंड, क्या पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। पर यदि हम बात करें अभी करंट सिचुएशन की, तो इस सिचुएशन जो भी हमने अभी लॉकडाउन से झेला और 2020 में हमने जो भी दिया, उसके बाद काफी ब्रेकडाउन और काफी सोचने का नजरिया चेंज हो गया, फील्ड चेंज हो गई, स्कोप चेंज हो गया। तो हम यदि बात करें स्कोप की, तो फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से किस फील्ड में बच्चों के लिए अच्छे स्कोप्स है? मैं ये तो क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं हुआ। किसी भी फील्ड में स्कोप होना या नहीं होना किस सिनेरियो पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारा मिथ है। किसी भी फील्ड में स्कोप होना या नहीं होना आपके एक्सेलेंस पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप जर्नलिज्म में हैं, ठीक है, ऑब्वियसली आपको उसमें स्कोप दिख रहा है। अब अगर आपकी अपॉर्चुनिटी को मैं लेना चाहूँ कि अरे कितना अच्छा करियर है ऐश्वर्या का, अलग अलग लोगों से मिलती है, क्वेश्चंस करना है, उसके बाद अपने कुछ व्यूज रखने, उनके व्यूज गेन करने हैं, मैं उस फील्ड में, चलो अब मैं तो इसमें अपना करियर सेट करूंगी। शायद 3 से 4 दिन बाद मुझे लगा अरे कैसे मैनेज करती है, कैसे हो पाता है, डिफिकल्ट है। आपको जिस चीज में मजा आ रहा है शायद मुझे नहीं आया, मैं आपको बोलूंगी ऐश्वर्या चलिए आपको लेक्चर्स लेने हैं मेरे बदले, आप 10 दिन पढ़ाओगे, 11वें दिन बोलोगे मैम मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आई एम नॉट हैप्पी टू टेक, कि क्या है बच्चों को वही चीज बार बार करानी पड़ रही है। डिपेंड करता है ऐश्वर्या आपका एक्सीलेंस किसमें। हम क्या मैथ ले लेते हैं, आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, कोडिंग का है, ये अब जो कोरल में जो स्कोप, जो पाइथन के थ्रू जो कमांड ले पा रहा है, क्या वो हम कर पाएंगे? नहीं। स्कोप हर चीज में रहेगा, स्कोप हमेशा से ही रहता है। हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको चेंज, जो सबसे हम बोलते हैं ना, चेंज इज एक्चुअली द ओनली कांस्टेंट थिंग इज चेंज, सिर्फ चेंज ही है जो हमेशा होता रहेगा। तो चेंज को आप एक्सेप्ट करते रहो, आपका जिसमें एक्सीलेंस है आप उसी फील्ड को सिलेक्ट करो, बट विद द न्यू पॉइंट, विद द न्यू व्यूज, कि आज के सिनेरियो में वो क्या फिट होगा। अब अगर तुम झोला टांग के बिल्कुल ऐसे हाथ में डायरी लेके बिल्कुल निकल जाओगी, तो वो तो तुम्हारे लिए सूट नहीं करेगा ना, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास आज तुम्हारे क्लिक पे अवेलेबल है, तुम उसके लिए लोगों के घर घर जाके मुझे आपके व्यूज जानने हैं, वो तो तरीका नहीं है। लेकिन काम तुम वही करोगे, काम तुम्हारा वही वही जर्नलिज्म वाला, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों तक दूसरों की बात पहुंचाने का। अपना स्कोप तुम्हारा उसी में ही है, लेकिन उसको नए सिनेरियो से देखो। तो एक्सेलेंस हर चीज में चाहिए, और एक्सेलेंस के बेसिस पे आपकी स्किल्स को आप जहाँ यूज कर सको, वही आपका करियर है। कभी भी ऐसा मिथ मत बनाओ, आज मैं कुछ बोल दूं कि नहीं अब तो कोडिंग में स्कोप है, पेरेंट्स अपने 6-6 साल के बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, मतलब वो बच्चे बैठ के, कौन सा बाहर खड़ा हुआ है कोई कंपनी आपके बच्चे का वो गेम खरीदने के लिए? उनको उनके हिसाब से एंजॉय करने दो, बच्चे लगे हैं कंप्यूटर पे कोड कर रहे हैं, इफ दे आर हैविंग दैट मच इंटरेस्ट, छोड़ दीजिए, उनको करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फोर्स तो मत करिए। किसी भी चीज में स्कोप डिपेंड करता है आपके एक्सेलेंस पे। आप अगर उस चीज को एक्सील कर सकते हैं, आप उस चीज को एंजॉय करके उसको कमा सकते हैं, तो आपके लिए करियर है, तो आपका उसमें स्कोप है, अदरवाइज नहीं। और कंपैरिजन भी इसी बेसिस पे आएगा। वही मैंने कहा ना, आज से 5 साल बाद अगर वो चीज आपके लिए मैटर करती है तो उसमें आप दिमाग लगाइए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। That's what I was waiting to hear, मैम। यही क्वेश्चन ही एक्चुअली यही था, लेकिन हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि सबका अपना एक नजरिया है, सबकी अपनी अलग क्वालिटीज है, और बस उसे आपको ग्रैब करना है विद एडवांस लेवल, अगर आप ऐसा सोचते हैं। मैम बात करें यदि सिर्फ एजुकेशन की, हम यहाँ बात कर रहे हैं, इससे हटकर यदि बात करें तो फिजिकल फिटनेस कितना डिपेंड करता है, यानी कितना इम्पोर्टेंट होता है। एजुकेशन तो हमें करियर दिया है, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग उतना काम नहीं करता, बट उनकी स्ट्रेंथ उतनी काम करती है, तो उस पर आप क्या करें? फिजिकल फिटनेस ऐश्वर्या मैंडेटरी है। फिजिकल फिटनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड हम बोलते हैं हो सकता है, और ये फैक्ट भी है। आप शुरू से देखिए, स्कूल टाइम में भी हमारे लिए जो फिजिकल क्लासेस होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज जो होती थी हमारी, या हमारी पीटी क्लासेस वगैरह कंपलसरी होती थी।
और इसको आप सिर्फ ऐसे मत देखिए ना कि अरे यार क्या करना है, सुबह उठ के कौन खेलने जाए कौन, आप इसको खुद ही फील करके देखिए। आप एक दिन सुबह जल्दी उठ के वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ खेलते हैं, आप खुद एंजॉय करेंगे। आज आप पूरा दिन एग्जॉस्टेड रह के काम करते हैं, शाम को आप आधे घंटे कोई भी ब्रेन गेम भी खेल लेंगे तो यू फील गुड। तो फिजिकल फिटनेस कहीं ना कहीं हमारे लिए मैंडेटरी है। कितनी सारी एमएनसीज होती हैं जो कंपलसरी बेसिस पे स्कूल्स और कॉलेजेस की तरह स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज करती हैं। दे हैव दैट। कितनी सारी एमएनसीज के एचआर टीम का काम ये रहता है कि हमें अपने एम्प्लॉइज को फिजिकली भी फिट रखना है। मेडिटेशंस वगैरह हो रहे हैं, या योगा को अब कितनी जगह कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। शुरू से ही अगर आप उसको अपनी हैबिट में ले लेंगे, आप हैबिचुअल रहेंगे फिजिकल फिट रहने के, तो ये फर्क पड़ेगा। अब फॉर इंस्टेंस अगर आपकी जगह यहाँ पे कोई ऐसे बहुत ही अनफिट से पर्सन, ऐसे बिखरे से बाल लेके कोई एकदम ऐसे इतना फिट या इतना ग्लैमरस फेस नहीं दिखेगा, तो मे बी उतना एकदम एंथुसिज्म नहीं आएगा ना, एक हल्का सा लगेगा हाँ ठीक है। तो फिटनेस इज एक्चुअली मैंडेटरी। It's my last question for you, that being an educationalist, what is your responsibility? What you feel that you are responsible towards the society? Okay, Aishwarya, you have asked as an educationist, right? So being an educationist, I think like my basic responsibility towards the society is to finish that difference between the standard and at what we are standing. Like we have to finish this, we have to cover this difference. We have to match that standard on which we want our education system to run. जहां पे हम चाहते हैं कि वो हमें दिखे, एक जो गैप दिख रहा है हमको बीच में, जो हम देख पा रहे हैं, which we are easy to see but we are not able to cover it. As an educator, that's my basic responsibility, to finish that gap, to cover that gap. That is really nice, ma'am, that you feel it is your responsibility. Actually, it is everyone's, yeah, that is actually, it's everyone's responsibility, I guess. So, as a teacher, as a parent, as an educationist, this is our responsibility, that our education system should be in that proper way, proper process. So it was really nice to talk to you, ma'am. We got a lot of things to do, like for a career of a student, like who all are responsible, a parent, a teacher, and a self one who is getting admission in a college. So, and also the facts and the sectors and that considerable things which we need to consider before getting an admission in a college. So it was really nice and a really nice session with you. Thank you, Aishwarya. Yeah, nice.